Hello and welcome to We Learn. This is session 1 of Tele 9 and ERP 9 Introduction. Topics to be covered: Introduction, General Features of Tele, Company Creation, Company Information. Introduction. If we talk about the Tele, yes, Tele is one of a software which comes in the market in 1986. We have already know how to maintain the account manually. When it comes to accounting, Tele people always know that what is basically accounting, how the accounts are maintained, what are the ledgers, what are the journals in which the transactions are to be done. Tele is an accounting package which is used for maintaining your account electronically. So yes, Tele is that one of software which help the accountant person to maintain the account in electronic mode. जब आप systems, computers की मदद से electronic mode पर जब किसी भी तरीके की accounting या transactions करना चाहते हैं, so उसमें Tele में ये सब transactions होती हैं. Tele, when it comes with the version 3, then it comes with 3.1, then 4, 4.5, 5, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9 and then ERP 9. So yes, in this whole sessions of Tele, we were going to more focus on 9 and ERP 9. When we talk about the general feature of Tele, what exactly the general features of Tele? Tele के कौन से ऐसे features हैं जो पता होने चाहिए? सबसे पहला, it maintains all the primary books of account. हर तरीके की अकाउंटिंग बुक्स जो हैं वो टेली के अंदर प्रिपेयर होती हैं, वेदर इट्स अ कैश बुक और अ बैंक बुक. टेली मेंटेन ऑल द रजिस्टर्स, जितने भी रजिस्टर्स होते हैं लाइक योर परचेज रजिस्टर्स, सेल रजिस्टर्स, जर्नल रजिस्टर्स, ये सब टेली के अंदर प्रिपेयर किए जा सकते हैं. टेली मेंटेन ऑल द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट, P&L, ट्रायल बैलेंस, वो सब जो है प्रिपेयर होता है. यस, कैश फ्लोज, स्टॉक स्टेटमेंट, ये सब जो है टेली के अंदर बनाया जाता है. टेली कैन मेंटेन आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स ऑल्सो. किसी भी तरीके की आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शंस जो होती थी वो भी टेली के अंदर की जा सकती हैं. It may provide a complete bill-wise information of amount receivable as well as payable, either party-wise or a group-wise. Yes, in that case, if we have to make any kind of a transactions on the bill basis और उसमें अगर एक individual payment करनी हो या group payments करनी हो, so it can be done. So party-wise payables और group-wise payable दोनों किए जा सकते हैं. It provides the facility of a bank reconciliations. Yes, ये bank reconciliation की facility भी provide करता है. Then it can provide a report of a particular date or reports for any range of date. आप किसी भी टाइम की, किसी भी डेट की, किसी भी डे की जब ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, so टेली वो सब ट्रांजैक्शंस कर सकता है. So that means इन सब फीचर्स को गैदर करने के बाद, समझने के बाद, we have an understanding कि टेली एक वो टूल है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस या ये कह लीजिए ऑलमोस्ट सारी अकाउंटिंग को हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. सो इन दैट केस यस, वी विल स्टार्ट विद आवर टेली पार्ट. दिस इज हाउ द टेली लुक्स. ये टेली की एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या होता है टेली में. व्हेन वी टॉक अबाउट, दिस इज द मेन विंडो ऑफ टेली. दिस इज द वे ऑफ टेली जिसमें राइट हैंड साइड पर जो एक पूरी बार बनी होती है, दिस इज बटन बार. इस बटन बार पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, दिस ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर पाथ, कि कहाँ पर आपको जाना है और वहां जाने के लिए आप किस तरीके के बटन्स को प्रेस करेंगे और वहां पर पहुंचेंगे. सो दिस इज व्हाट दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज बटन बार. यस, एट द सेम टाइम टेली एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करता है. एज इट्स अकाउंटिंग, इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ एडअप एंड माइनस ऑफ द ट्रांजैक्शंस. सो इस केस में यहां पर होता है कैलकुलेटर पैन for the Tele. Then information pen. Information pen in terms of जब आपको किसी भी तरीके की information updations करनी हो तो उस केस में हम information pen का help लेते हैं. Now, as we already viewed in the previous slide कि ये एक gateway होता है Tele का. When it comes to gateway, so in that case yes, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है gateway of Tele, जिसमें right hand side पे we can see the company's info. On the left side we can see the list of selected companies. So right hand side पर जो कॉलम्स बने हुए हैं ये बेसिकली हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से कंपनी क्रिएट की जाती है. जब टेली की बात होती है तो इनिशियल लेवल पर सबसे पहले
कंपनी क्रिएट करनी होती है। दैट मीन्स आप जिस भी कंपनी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसकी पूरी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर बनाई जाती है और उसकी पूरी कंपनी को फॉर्म अप किया जाता है जिसके नाम से फर्दर सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। सो इन दैट केस यस, बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं व्हेन इट कम्स टू कंपनी इन्फो, लाइक सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज एन अ रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप एंड रीस्टोर्स। जब एक सिलेक्ट कंपनी को चूज किया जाता है सो न्यू विंडो इज अपीयर्ड विच इज लुक लाइक समथिंग दिस, जो कुछ इस तरीके की दिखती है। इन दैट केस दिस इज व्हाट द विंडो ऑफ अ कंपनी क्रिएशन, किस तरीके से कंपनी क्रिएट की जाती है। दिस कैन बी डन विद द कंट्रोल M ऑल्सो। दिस इज अ शॉर्टकट ऑफ क्रिएटिंग अ कंपनी। कंपनी क्रिएशन में सबसे पहले आपको कंपनी का नाम देना होता है। एज वी आर सीइंग इन द ब्लैक साइन, यहाँ पर कंपनी का नाम देना होता है। देन वी पुट एंटर। एंटर के बाद वी हैव टू गिव अ मेलिंग नेम ऑफ अ कंपनी, कंपनी जिस नाम से ट्रांजैक्शंस कर रही है। देन कंपनीज एड्रेस, देन statutory compliance, state, pin code, telephone number, mobile, email and enable auto backups. Then currency symbols, maintain financial year, year मतलब किस ईयर से किस ईयर तक की ट्रांजैक्शन आपको बनानी है, किस ईयर से आपकी कंपनी ट्रांजैक्शन शुरू हुई है, टेली वॉलेट, देन रिपीट पासवर्ड एंड देन फाइनली बेसिक करेंसीज इंफॉर्मेशन। सो दिस इज व्हाट द विंडो जहां पर आपको एक कंपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। So this is what the first. Type the name of a company you want to create. अब अपनी कंपनी का नाम क्रिएट करेंगे जो आप चाहते हैं। Then you have to write the mailing address of a company. वो एड्रेस जहां पर आपको मेल अप करनी है। Then type the mailing address, mailing name and mailing address. The previous is mailing name, then other is mailing address of a company. कि कंपनी का क्या एड्रेस है। Then in a tally account can be maintained in two ways. जब tally accounting की मेंटेनेंस की बात आती है तो in that case दो तरीके से अकाउंट मेंटेन हो सकता है। That is what maintaining with inventory और account only account. In terms of कि inventories के साथ आप अकाउंट को मेंटेन करना चाहते हैं या सिर्फ अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं। So these are the two options which we were seeing in the window, account only or account with inventory. In this portion it was on the right hand side of the maintaining and financial years from, ये एक विंडो आपको शो कर रही है। Then this is the two part, account only and account with inventory. Next option is tally vault password. This basically provides us security control of the company's account. सिक्योरिटीज, जब हम किसी भी तरीके की सीक्रेट या कह लीजिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक कंपनी की आकर हो रही होती हैं उन्हें जब सेफ गार्ड रखना होता है सो इन दैट केस पासवर्ड मेंटेन होता है। सो टेली वॉलेट पासवर्ड क्रिएट किया जाता है जस्ट फॉर सेफिंग और इंफॉर्मेशंस। सो जब आप किसी इस कंपनी में कभी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको टेली वॉलेट पासवर्ड देना होगा। आफ्टर फाइलिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रेस्ड एंटर, A new window will appear, ask for the confirmation. जब ये सारी informations हो जाती हैं, in a tally basically we use the help of keyboard. हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से ही हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। माउस यूज इज वेरी लेस इन टेली। सो इन दैट केस जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो वन बाय वन हम हर ट्रांजैक्शंस को फिल करते चले जाते हैं। देन आफ्टर दैट एक बहुत ही छोटी सी विंडो अपीयर होती है। Then we have to press Y for the acceptance. Y in terms of कि yes we will agree with all the transactions जो हमने अभी पीछे की थी। This is what exactly showing. एक छोटी सी विंडो खुल जाती है accepting की which is saying yes or no. Now next is what comes to company info. जब आपकी yes प्रेस करने के बाद और वी कैन से दैट Y प्रेस करने के बाद आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। सो विद द हेल्प ऑफ Alt F3 आप कंपनी इन्फोस पर चले जाते हैं। यू कैन सी दैट अगर आप किसी भी एक नाम से कंपनी क्रिएट करते हैं तो वो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में आ जाती है जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर होती है इस गेटवे ऑफ टेली के। एंड राइट वे पे yes it is what company info. कंपनी इन्फोज में there were number of options to take. इसमें सबसे पहला होता है the select a company. Select a company is that area जहां पर एक छोटी सी विंडो क्रिएट होती है जहां पर आपको एक कंपनी को सिलेक्ट करना होता है।
Then another, that is what this option permit you to load any company which was created early from the list of the company listed. यानी कि जितने भी उस टेली अकाउंट और टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, आप उनमें से एक कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो. So that comes into the select company. Then other is it allow you to exit from the company not in use from the dialog box. In terms of कि जब आपको एग्जिट करना होता है और आपको किसी भी तरीके से कंपनी को नहीं यूज करना है, सो उस केस में यू कैन शट द कंपनी. सो दिस इज व्हाट द पॉइंट जहां पर आप विद द यूजिंग ऑफ द एंटर कीज आप शट कर सकते हैं उस कंपनी को. देन Alter is allowing you to change the information of existing company filled at the time of the creation of a company. So this is what आप जब इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हो या किसी भी तरीके का टाइम या डेट चेंज करना चाहते हो, तो इन दैट केस दैट कम्स इनटू द ऑल्टर. आप ऑल्टरेशन की हेल्प लेते हो उसके अंदर. देन सिक्योरिटी कंट्रोल. सिक्योरिटी कंट्रोल होता है जस्ट टू चेंज द पासवर्ड. जब आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, जो कि टेली वॉलेट के अंदर आपने पासवर्ड दिया था, इफ यू वांट टू चेंज दैट वन, तो इन दैट केस यू कम्स टू द सिक्योरिटी कंट्रोल. देन स्प्लिट कंपनी डाटा. जब कंपनी की इंफॉर्मेशन आप दूसरी स्पेसिफिक एरियाज में यूज करना चाहते हो, तो उस केस में आप दैट मीन्स कि आप एक कंपनी से दो अलग कंपनीज बनाना चाहते हो, सो उस केस में आप स्प्लिट कंपनी डाटा की ऑप्शन को चूज करते हो. दैट इज व्हाट स्प्लिट द कंपनी टू फॉर्म अ टू कंपनीज आउट ऑफ एग्जिस्टिंग वन एंड आफ्टर द डाटा स्पेसिफाइड बाय द यूजर्स. Then this options allow the user to take a backup either on the local hard disk or any external medias. This is what a backup file. जब किसी भी तरीके के बैकअप्स को क्रिएट करना होता है, सो इस ऑप्शन को चूज अप किया जाता है कि आप बैकअप रखना चाहते हैं. सो क्लिक ऑन बैकअप एंड यू बैकअप योर इंफॉर्मेशन. That is what it's writing. Then on your local hard disk or on any external media. So that comes into the backup. Then restore. Restore is the options allow the user to return to the original usable and functional condition. So this is what the or we can say that restore area. जब आपको एक ऑप्शन दी जाती है टू रिटर्न टू दी ओरिजिनल वंस, आपने जो भी चेंजेस किए होते हैं उन चेंजेस को छोड़ के जब आप ओरिजिनल पोजीशन पर जाना चाहते हो, तो वो रीस्टोर हो जाती है. So restore data from the one storage to another storage. That is moving from the one path area to another path area. Now this is what जो F1 से हमारी विंडो आती है. There was only one point F1 and F12 and yes Alt F1 for the shut the company, but yes in a company info these are one of the most important areas कि हम कंपनी के साथ किस किस तरीके के चेंजेस कर सकते हैं. तो इस ऑप्शंस को जानने के बाद we come to know कि in company we can select them, we can shut them, we can create a new company, we can alter a company, we can secure the controls, we can split the companies also. At the same time हम बैकअप मेंटेन कर सकते हैं, हम रिस्टोर कर सकते हैं कंपनी को. एट द सेम टाइम जब सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं, वी कैन क्विट फ्रॉम दैट एरिया. दैट मीन्स हम एग्जिट भी कर सकते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ प्रेस 11, दैट मीन्स जब हम F11 का यूज करते हैं, तो F11 के बाद हमें कंपनी के फीचर्स पता लगते हैं. दैट मीन्स वी वेंट टू द फीचर्स ऑफ अ कंपनी. फीचर्स ऑफ कंपनी यानी कि F1 को क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलकर सामने आती है. दिस विंडो इज बेसिकली गिविंग यू अबाउट द जनरल, आउटस्टैंडिंग, कॉस्ट प्रॉफिट, इनवॉइसिंग, बजट एंड सिनेरियोज एंड अदर फीचर्स अबाउट द कंपनी, जिसमें आप येस एंड नो की ऑप्शन से अपनी चॉइसेस बताते हो. दैट मीन्स इन जनरल you were maintaining the account and inventories, what are your insert in the profit and loss account, what are your multi-currencies, that means you are in the multi-currencies or not, say yes or no. If you have a certain kind of an outstanding management, so say yes or no. So in that case yes or no की option से हम एक पूरा अकाउंटिंग फीचर्स देते हैं जिसके ऊपर पूरी परफॉर्मेंस होती है आने वाली जनरल और ट्रांजैक्शंस की. Then it is what the F12. F12 is basically discussing about the configurations. जब हमें किसी भी तरीके की कॉन्फ़िगर करना होता है अपनी कंपनी के अंदर,
F11 में फीचर्स थे जिससे आने वाली सारी ट्रांजैक्शंस डिपेंडेंट होती हैं. दैट मीन्स एनेबलिंग दी ऑप्शंस, जो भी आपकी कंपनी में लेजर्स और जितनी भी अकाउंट प्रिपरेशंस होती हैं, लाइक आपको टैक्स देना है कि नहीं देना है, एंड यू हैव टू से येस एंड नो फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, और उसके बाद आप जो टैक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो कर पाते हैं. सो F12 में कन्फिगर होती हैं. सो कन्फिगरिंग में ये विंडो खोल के आती है जिसमें यू हैव टू पुट जनरल इंफॉर्मेशन, सिंबल्स आप बता सकते हो, वाउचर एंट्रीज कर सकते हो, पेरोल कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो, प्रिंटिंग, ईमेलिंग, डाटा कॉन्फ़िगरिंग, TDL कॉन्फ़िगरेशंस, एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस, लाइसेंसिंग, दीज ऑल वर द कॉन्फ़िगरेशंस जो कि आप कर सकते हो F12 से. तो F12 से एक ये राइट हैंड साइड पे जो विंडो है वो न्यू विंडो खुल के आती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरिंग द ट्रांजैक्शंस. So yes, this is in the Tally of first session of a Tally, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि कंपनी किस तरीके से क्रिएट होती है और कंपनी इन्फोर्स क्या होती है. दैट मीन्स व्हाट आर द थिंग्स जो कि हमें Tally में सबसे पहले जाननी होती है. तो वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल स्टेप ऑफ लर्निंग अ Tally इज व्हाट क्रिएटिंग अ कंपनी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज हाउ डू यू क्रिएट द कंपनी. आप किस तरीके से कंपनी को क्रिएट करेंगे. Creating procedure was we already discussed in the previous slides. And now what is the function of F1? F1 का function क्या होता है? F1 का function होता है just to telling about the features of a company. वो हमें features of company के बारे में बताता है. So this is all about for the today's session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.